Namaskar and welcome to the next episode of your most awaited talk show, India Bounce Back. And today I have a wonderful, eminent human being with me who has devoted his life for the humanity. And we are really blessed to have him on the show today. And in next 30 minutes, when you will hear his journey, his story, and his view on how India can bounce back, you will have a, a, a whole lot of different perspective about looking at things. I have Swami Brahma Parananda Saraswati ji with me. Uh, Welcome, Swamiji. It's an honor, it's a pleasure, and it's really a blessing for me today that you are here on this talk show. So before we begin having a conversation, I would like to read your official introduction. So, Swamiji is a disciple of Honorable Swami Dayananda Saraswati ji, and Swami Brahma Aparananda Saraswati ji established Hindu Society and Practice Center in Rajasthan and supporting and serving communities in need. Over the period of almost 2 decades, Arsha Vidya Tirtha, in the leadership of Swamiji, supporting almost 300 families through religious, spiritual practices and uniting them all under this initiative. Along that, 75 underprivileged children and their families, they supported through their residential hostel, providing safe, clean shelter, food, education, and healthy environment to grow and thrive. Swamiji has addressed his public talks in Australia, Singapore, and United Kingdom. He has been invited as an international speaker, addressing international conferences in the world-leading academic universities like Oxford Universities, Harvard Universities, Johns Hopkins University, and Cambridge University. And it's an amazing, amazing pleasure and honor. And again, I'm saying it's a blessing to have you on the talk show today. Swamiji, pranam. Namaskar. Thank you very much. Thank you, Swamiji. Swamiji, so I would like to start with my first question to you. What I read just now is obviously your professional introduction, which I took it from your website. Apart from that professional introduction, मैं जानना चाहता हूँ स्वामी जी अपनी जबान से अपने बारे में क्या बोलते हैं. I want to know how you describe yourself, your journey of life for my viewers. Thank you. So first of all, I like to introduce myself and my teacher, जिन्होंने खुद अपनी पूरी लाइफ जो है इसी पब्लिक के लिए, जनता के लिए ऑफर की है. और हम लोगों के जैसे बहुत सारे उनने से hundreds of disciples he has made to serve this society. I am Swami Brahmapananda Saraswati, and presently I am in Rajasthan. I have got 2 places to give my service and help. I have got one center in Jaipur, Sitapura, and another is in Udaipur, Dabok, just opposite to airport. So this center we run here, taking help of the local people, and also we have got a aim for Seva, the main institution started by Swami Dayananda Saraswati, and the first his president was R.K. Venkatraman, was ex-president of India, and it was started 2002 to just bring the people who are almost, you can say, दूर दराज में रहने वाले परिवार हैं, उनको सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको हेल्थ, उनका एजुकेशन, ये सारा देख करके स्वामी जी ने उन लोगों के लिए एक विशेष करके ये एम फॉर सेवा, अखिल भारतीय सेवा अभियान, इस नाम से प्रारंभ की थी. और ये केवल राजस्थान में नहीं, पूरे भारत देश में ऐसे 120 छात्रालय चलते हैं, जिसमें केवल मात्र जो नीडी है, जो जिनको आवश्यकता है सपोर्ट की, ऐसे परिवारों को
हम लोग सपोर्ट करते हैं। दो तरह से, उनका हेल्थ, उनकी शिक्षा और उनका जो भी बैकग्राउंड है उसके लिए हम लोग अधिक से अधिक सपोर्ट करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो पहले आर्य समाज वाले नहीं, जो अभी लेटेस्ट हुए, जिन्होंने ऋषिकेश में पुरानी झाड़ी में रह करके अपने जीवन के साधना में दिन निकाले गंगा के किनारे पर, स्वामी दयानंद आश्रम पुरानी झाड़ी ऋषिकेश is well known, and I will give small recognition. Just 3 years back, our Mananiya Pradhan Mantri ji, he went to see Rishikesh to see Swami Dayanand Saraswati ji. He also sees his own guru. So same Swami Dayanand Saraswati ji, and he got Samadhi in 2015. So he's established one ashram in Rishikesh, one is Coimbatore, one is in Nagpur, and another one is in Pennsylvania, US. This main aim was just recollect the thoughts and give the education of our Vedic Dharma Parampara. And he has created these places to take long-term course of Vedanta and Sanskrit. So he has started 3.5 years course, more than 10 courses he has taught. And like me, there are so many sadhus around, sannyasis. They have taken the sannyasa diksha from him and taking this education, and now they are spreading in the society wherever it's needed. So that way, Swamiji has made more than 100 of disciples to teach all over world. Even we have got so many centers in other than India, so many places. So that is our Swami Dayanand Saraswati. He used to teach Vedanta, Bhagavad Gita, Upanishad, and Brahma Sutra. So this was main topic. But later on, he saw that it is another very एक कुछ ऐसी जरूरत है कि आज के इस समय में इस समाज के अंदर हम लोग कुछ ऐसे परिवारों को मदद करें जो नीडी है, और उनको हम मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कोशिश करें। तो इस तरह से उन्हें अखिल भारतीय सेवा अभियान इसका प्रारंभ किया, और इसी के अंतर्गत ये जयपुर वाला जो हमारा आश्रम है, उदयपुर वाला आश्रम है, और हम लोग यहाँ जो उदयपुर और मतलब राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे जो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल दूर दराज में रहते हैं, और उनको जो है इस एजुकेशन की आवश्यकता है, तो वहीं से उन्हीं परिवारों को मिल करके हम लोग वहां से बच्चे, वो माता पिता खुद ले आते हैं, और हम उनको यहाँ पे जो भी हो सके उतना हम अपने तरफ से उनको अपना नॉर्मल एजुकेशन के साथ में वैदिक धर्म के अच्छे संस्कार, जिससे कि वो आज के समाज के लिए बहुत सुंदर नागरिक बने और सबके लिए मददगार साबित हो, और किसी प्रकार से उनके अंदर जो आज की जो विकृति है उनके अंदर ना, इसलिए चल रहा है। बहुत बढ़िया सोच है और बहुत बढ़िया इनिशिएटिव। आई थिंक मैंने इसके बारे में पढ़ा था, एंड आई रियली स्वामी जी को भी और आपको भी सर, स्वामी जी बहुत बहुत दिल से आभारी हूं कि आप इसी सोच की वजह से शायद आज हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति बची हुई है, और हम जो हैं, हमारे जो मूल आधार है जिसके ऊपर हमारा शायद एक हिंदुस्तान की नींव रखी गई, उन चीजों को, उस ज्ञान को जितने ज्यादा लोगों तक हो सके वो पहुंचाना बड़ा जरूरी है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, आपने अपने गुरु जी का नाम लिया, स्वामी दयानंद जी का। मैं जानना चाहता हूं कि गुरु जी की कौन सी ऐसी 5 टीचिंग्स हैं, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, गुरु जी की ऐसी कौन सी 5 टीचिंग है जिन्होंने आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशनल इंपैक्ट लाया? ऐसी तो कई चीजें हैं, लेकिन इसमें मैं पहला कहूंगा उनका जो जैसा नाम दिया है उनके गुरुजी ने, दया। उनके गुरु स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी, तो उन्होंने भी उनके अंदर कुछ ऐसी चीज देखी थी, तो उनका नाम ही दया आनंद है।
जिनको दया करने में ही आनंद आता है। तो ये पूरा एग्जाम्पल है, उन्होंने एक सामान्य नीडी लोगों के लिए ना, उनका ये सारा देख करके उन्होंने उनके ऊपर भी दया की। तो उनका मेन एक दया का एक स्वभाव है, कभी भी उनके अंदर एक विकृत होकर के कभी हमने क्रोध नहीं देखा, नेवर वाज गेट एंग्री एंड पेशेंट, so many situation we see is very difficult to handle. At the same time, he has got that patience and never think for small thing. Anything you want to think big, so that at least 50% will come to end. So, but you thought, so that way we always think big and keep big heart. Whenever you want to give to someone, to give, you feel like he said dhanam means we should feel punch. When you give, after giving anything, you should feel punch. Oh, I have given more. That's why you used to tell, when you give 11 rupees, adding 1 rupees to 10, that shows that he or she wants to give more than 10, but cannot, so they add 1 rupees, 21 rupees, 51 rupees, or 101. Whenever you add 1, it stands for that he or he wants to give more, but that is the capacity. So that kind of thing has a big heart, daya, compassion, and he has more learned person, Sanskrit, Vedanta, and he was really bound for the Shastra. He will not say anything other than the Shastra. And he followed Adi Shankaracharya, and we are belong to the same Matha, Sringeri. Okay. We are Dasanama Sannyasa. So that way he followed the traditional fully, and also taught us that you can also be an example for the society. Because nowadays we see everything is like running towards Western culture. Even though we have no against anything, but we should not leave our Indian ancient culture. True. So that we have to keep with us and then move the society and give the direction, the good direction for the people who are needy. That way. Thank you, Guruji. That was really crisp and wonderful. अभी आपने जिक्र किया कि ज्यादातर एक वेस्टर्नाइज कल्चर की तरफ लोग बढ़ चुके भी हैं और हो भी रहा है, हम लोग बहुत कुछ देखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम किसी को दोष ठहराएं, पर मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा गुरुजी कि ऐसा आज के टाइम में ऐसा क्यों है कि आज, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, मुझे याद है बचपन में मेरे पिताजी मुझे आर्य समाज मंदिर लेके जाया करते थे, क्योंकि हमारे घर के पास था, वो उसमें विश्वास रखते थे, वो जाते थे। मैं डीएवी स्कूल से पढ़ा हूं, तो हवन के मंत्र हमारे को बचपन से ही उच्चारण कराए गए। तो आज भी अगर हम कहीं हवन करने बैठते हैं तो मैं ओम हिरण्य गर्भा संवत्ताग्रे भूतस्य जाता, वो एकदम से रिदम शुरू होता है तो हम पूरा हवन मंत्र करना शुरू कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। मुझे 50 रुपए एक नियम याद करने के उन्होंने दिए थे, मोटिवेट करने के लिए। तो मैंने सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है, ये पहला नियम याद किया था, तो 50 रुपए मिले थे। तो मुझे आज भी, मतलब मेरा ये कहना है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एनकरेज करते थे उन चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए। बट मैं बहुत समय से अब देखता आ रहा हूं कि आज एक दुनिया, एक विश्व अलग ही बनता चला जा रहा है। लोग एक मटीरियलिस्टिक या एक बनावटी दुनिया में ज्यादा जा रहे हैं, और हमारा जो एक कल्चरल वैल्यूज हैं, वैल्यू सिस्टम, मैं बाकी सारी चीज भी अगर हम हटा दें, एक वैल्यू सिस्टम सोसाइटी से हटता जा रहा है। गुरुजी, आपका क्या मानना है, ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों हुआ इसका ऐसा, या ऐसा सिचुएशन? हाँ, इसके लिए हमारा वैल्यू एजुकेशन जो है उसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि आप देखिए, पहले समय में जो भी हम प्राचीन संस्कार कहते हैं, उसके अंदर जो गुरुकुल के माध्यम से जो संस्कार दिए जाते थे हर एक बालक बालिका को,
और हमेशा एक बोला जाता था कि भाई हम केवल अपने लिए हम लोग जीते हैं। कभी शास्त्र में हम देखते हैं कि कभी देखो कि आप कभी दूसरे के लिए जी करके देखो, दूसरों को भी मदद करके देखो, क्योंकि हम लोग सर्वम खलु इदम ब्रह्म और वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारे वेद के नारे हैं, मंत्र बिल्कुल। है। तो उसके अंदर अगर देखते हैं हम तो सर्वे भवन्तु, तो उसके अंदर मैं भी हूँ, सबके अंदर। तो जब मैं सबके लिए सोचता हूँ तो मैं भी उसके अंदर आता हूँ। तो ये हमारे शास्त्र की सोच है, और यही सोच हमारे पूर्वज और हमारे आचार्यों ने, गुरुओं ने अपने इस वेद पाठ के अंदर, इस परंपरा के अंदर डाले थे कि हमको कभी अपने ही बारे में नहीं सोचना, कभी दूसरों के बारे में भी सोचा करो कि अगला व्यक्ति किस तरह से जीवन जी रहा है। तो ये शास्त्र के सिद्धांत है। कभी भी हमारे अंदर एक छोटी छोटी वैल्यू बताए उन्होंने कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने क्या दरिद्र। अगर मुझे किसी कुछ देना है तो मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं पहले अपना देखूं फिर बाद में। लेकिन आपकी जो वाणी है, उसके अंदर जो वाणी से अगर मधुर भाषा जाती है तो अगला व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है। तो प्रिय वाक्य प्रदान है न सर्वे तुष्यन्ति, इवन बिल्ली के सामने अगर हम प्यार से उसको पुचकारते तो आती है। जानवरों को अगर कुछ प्रेम से हम खिलाते तो वो बाधा दौड़ के आते। तो आपकी वाणी में आपकी क्या इतनी कंजूसी कि आप उसको भी ठीक से दूसरे के सामने प्रिय वाणी नहीं बोल सकते। वचन एक आध दरिद्रता है ना। देने के टाइम तो ठीक है आप कंजूसी करोगे, लेकिन अब वाणी का जो प्रयोग कर रहे हो उसके साथ तो आप थोड़ी उदारता रखो। तो ये हमारे सिद्धांत है, हमारे शास्त्र है। बिल्कुल है। ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो हम कभी भी किसी को हार्ट करने की हिंसा माँ को रियाते नो, हम कभी भी कोई हिंसित नहीं कर सकते। क्योंकि एक हमारे गुरुजी ने हमको धर्म बताया था कि व्हाट इज धर्म रियली। तो एक सामान्य धर्म ये है कि जब मैं दूसरों से ऐसा व्यवहार चाहता कि कभी मुझे हर्ट न करे, मुझे कभी भी किसी प्रकार का दुखी न करे, और किसी प्रकार की चीजों से मुझे ठगे नहीं, he should not cheat me, hurt me, any kind of thing। तो ये मैं दूसरों से अपेक्षा करता हूँ। जब मैं दूसरे के साथ व्यवहार करता हूँ तो क्या मैं ये सारी चीजें ध्यान में रखता हूँ? तो वो अगर ध्यान में रखते हो तो हाँ, आप जो है धर्म का, क्योंकि कितना अनपढ़ व्यक्ति हो, कहीं पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन वो कभी भी अपने आप को इस तरह का दर्द और दुख कोई मुझे दे ऐसा नहीं चाहेगा। सामान्य धर्म है कि मैं किसी को भी हाथ नहीं करूं, क्योंकि हिंसा माँ को या किसी को भी हिंसा पसंद नहीं, तो मैं दूसरों के साथ कैसे कर सकता हूँ। तो ये हमारा नारा रहा है, हमारे शास्त्र का नारा रहा है कि मैं किसी का, आई हैव नो राइट टू चीट अदर्स। इसलिए अगर मैं अपने यहाँ से काम चालू करता हूँ तो अपने आप ही समाज, सोसाइटी जो उसके लिए तैयार हो सकती है। तो इस तरह से ये शास्त्र का हमारा सिद्धांत है, और वहीं से अपना एजुकेशन चालू होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने बच्चों के अंदर डालते हैं तो जरूर वो सोचेगा कि नहीं, आई शुड नॉट चीट। तो हम तो स्मार्ट बनते, क्लेवर बनते, लेकिन ऑन द प्रोसेस आई डोंट बॉदर, आई डोंट माइंड टू चीट अदर्स। वो जो है एक प्रकार का हिंसा है, और दैट इज नॉट धर्म। और वो धर्म हमारे शास्त्र में, और वो धर्म की बातें अगर बच्चों को सिखाया जाए तो शायद वो भी कोई लेट नहीं, हम पुनः फिर अपने धर्म के रास्ते पे आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा मेरे व्यूअर्स को जो ये इसको देख रहे हैं इस वक्त लाइव, ये जरूरी है आज इन चीजों पर फोकस करना, क्योंकि अगर आज हमने, कहते हैं कि बच्चे पे की गई इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होती है, और अगर आज हम एक बच्चे की अच्छी नींव रख पाएंगे तो हम शायद माता पिता होने का एक सही फर्ज अदा कर पाएंगे। ये एक मेरा पर्सनल मानना है। स्वामी जी, आज आप मेरे साथ हैं तो मैं आपसे कुछ शब्दों के आपकी समझ और आपका मतलब, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका मतलब जानना चाहूंगा। और क्योंकि ये वर्ड्स लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे समझूं कि इनका मतलब आपकी आपकी तरफ से इनका मतलब क्या है। सबसे पहला शब्द है सन्यास। हाँ, बिल्कुल। तो
ये हमारी जीवन शैली है ना, उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फोर्थ है संन्यास। हम्म, ये हमारे 4 आश्रम है। तो आश्रम। उन 4 आश्रम में से एक आश्रम है संन्यास। तो ये जो क्रम है, 24 साल 25 साल तक गुरुकुल में रह करके वो ब्रह्मचारी रह करके इन सारे वेदों का अध्ययन करे, फिर गुरु की आज्ञा से, उनके अनुमति से जाकर के गृहस्थाश्रम स्वीकार करे, और गृहस्थाश्रम के अंदर जब उनके आगे से संतान होती है, और संतानों को भी वो उसी प्रकार से जैसे वो खुद सिखाए वैसे वो बच्चों को भी सिखाए और उनको भी गुरुकुल में भेजे। और फिर ये गृहस्थाश्रम में रहने के बाद 50-60 साल तक, उसके बाद में धीरे धीरे वो वानप्रस्थ हो जाए, घर में रहते हुए भी अपने आप मतलब वन के तरफ, मतलब धीरे धीरे जो है अपने बेटे के ऊपर अपना कारोबार जिम्मेदारी देते हुए, फिर उसके बाद में आता है संन्यास। संन्यास का अर्थ सम्यक न्यासः, मतलब एक प्रकार से त्याग। किसका त्याग करना है? मुझे पहले से ही बताया जाता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना, तुमको अपना ख्याल करना है, परिवार का ध्यान रखना है, अपनों का। ऐसे करते करते मैं अपने जीवन में उसमें ही उलझा रहता हूँ। लेकिन शास्त्र कहता है कि भाई ये आप कब तक अपने लिए इकट्ठे करते रहोगे, है ना? ये संग्रह है, संग्रह वृत्ति है मनुष्य की। कहते देवताओं को क्या है, उनको अधिक भोग विलास की आदत रहती है, और असुरों को होता है कि वो लोग अधिक शायद दूसरों को हिंसा करते हैं। लेकिन मनुष्य की वृत्ति है सांग्रहिक वृत्ति। तो एक बार देवताओं ने पूछा था, तो कहा, ब्रह्मा जी ने कहा था कि देखो तुम लोगों को एक व्रत लेना है कि तुमको जो जो चीज तुमको मिलती है ना, उसमें से कुछ चीज आप दूसरों को क्या करना है, दान में देना है। तो दान करते रहोगे तो अपने आप ही अपनी संग्रह की बुद्धि कम होती जाएगी। तो वो कहने का संन्यास के टाइम में ये दिया जाता है कि मुझे केवल अपने इस शरीर के लिए जो आवश्यकता है उतना हमको रखना है, और बाकी मैं अधिक से अधिक लोगों के साथ बांटूं, और जहां जहां उसकी जरूरत है तो वहां वहां मैं अपने जो भी मेरे पास है तो मैं दूसरों के लिए इस्तेमाल करूं। तो जब वो जाए यहाँ से इस संसार से, तो फिर उसका अपना कोई ऐसा नहीं कि इसने ये कुछ किया है। इसने जो किया है वो तो सारा जनता के लिए और सारे समाज के लिए। समाज के लिए किया। तो हाँ, तो त्याग का अर्थ होता है कि जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर आपका कोई भी अपना पर्सन नहीं है, आप केवल दूसरों के लिए। हमको गुरुजी कहते कभी न कभी आप निरंतर अपने लिए जीते हो, कभी दूसरों के लिए भी जी करके देखो, कितना आनंद आता है। तो त्याग का अर्थ ये होता है कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए कुछ करूँ, है ना? और जो भी मेरे पास में दूसरे के अच्छे काम के लिए मैं उसको लगाऊं, तो वही त्याग है। नहीं तो केवल मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, कहने की बात नहीं होती। यहाँ तो आपको पर्सन अपने आप अपने ऐसा जीवन जीना पड़ेगा कि जिससे कि लोग अपने आप देख करके उसको सीखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। गुरुजी, सन्यासी स्टेट ऑफ हाँ माइंड है, या एक इंसान को सन्यासी बोलते हैं जब वो उस स्टेट में होता है? हाँ, तो नॉर्मली ये बहुत चित्र है कि हम लोग बचपन में वो क्रिकेट देखते थे ना, हाँ तो हम जी। कहते कि अरे वो अभी रवि शास्त्री जो संन्यास लेगा, है ना? तो हाँ, हमारे इसमें क्या दिमाग है, हम ऋषिकेश आएगा और गंगा किनारे ये कपड़े पहनेगा। बैठेगा। करेक्ट, इसीलिए ये सवाल रखा। एग्जैक्टली हाँ। तो मेरे दिमाग में ऐसा होता, संन्यास लेगा मतलब क्रिकेट से संन्यास लेगा, मतलब वो क्रिकेट का खेल वो छोड़ देगा। लेकिन अब जो है ये हमारा, मैंने जैसे कहा कि ये संन्यास अपना चतुर्थ आश्रम भी है ना? हम्म, तो अगर कोई संन्यास जीवन जीना चाहता है तो उसको जरूरी नहीं कि ये एक कपड़ा ही पहनेगा, है ना? ये एक उसके अंदर एक वैल्यू है उसके अंदर कि मैं बस आज से, मैंने अभी तक मेरे अपने लिए मेरे परिवार के लिए किया है, अब इसके बाद में मैं जो है जो भी करूँ, मैं तो अपने अपने आप को करना है कि पहले मुझे अपनी जो जर्नी है, मैं जिसके लिए इस दुनिया में आया हूँ, भगवान ने मुझे मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन में मुझे अपना उद्धार करना है पहले, है ना? हाँ, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम वसादे, अपना खुद का पहले उद्धार करो, है ना? हम्म, उसके बाद में हमेशा बताए जाते हैं फ्लाइट में कि पहले जब इमरजेंसी है तो पहले अपना ध्यान रखो, है ना? हम्म, एंड देन हेल्प अदर्स। हम्म, तो पहले मैं यहाँ जीवन में आया हूँ तो मुझे अपना जो साध्य है, मैं साधक हूँ और मैं साधन अपनाता हूँ मेरे जीवन का जो साध्य है।
व्हाट इज माय गोल ऑफ माय लाइफ। गोल ऑफ लाइफ। ये जो है संन्यास के लिए, along with shastra, along with teacher, I have to make clear and then start towards that direction. तो वो जो हमको बताया जाता है उसके अनुसार जो जिया हुआ जीवन, हाँ, वो भी एक संन्यास जीवन कहलाता है। तो त्याग जो है ये केवल एक क्रिया नहीं है, ये अपना क्या है कि एक्शन है, एक अपना जीवन जीने की एक पद्धति है। आप घर में इवन if you spend your time and after 70 or 60, you can say I just sit in my house, but I don't have that kind of interaction, और वो मेरा पहला जो था मैं नहीं रहूंगा, मैं तो अभी जितना भी करूंगा अपने लिए और जितना भी हो सके मैं अपने समाज के लिए। तो वो परिवार से ही भिक्षा लेगा, लेकिन वहां रहते रहते भी जीवन संन्यास का जी सकता है। तो ये मेरी जीवन जीने की एक अलग शैली भी संन्यास कहलाती है। तो संन्यास दीक्षा तो है, जो गुरु से दीक्षा लेते वो भी संन्यास दीक्षा भी है, लेकिन जीवन जीने की एक शैली है। इवन एनीबडी गृहस्था कैन बी ए सन्यासी, ऐसे शोट एक्शन व्हाट ही डज और शी डज। गुड, थैंक यू सो मच गुरुजी, इट वाज रियली रियली इंसाइटफुल। नेक्स्ट वर्ड इज शिष्य। हाँ हाँ, वेरी गुड। शिष्य की परिभाषा, क्योंकि और ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, और आपसे मैं क्यों जानना चाहता हूं, बिकॉज अभी पीछे ना मुझे भी कुछ जनरली आपको एज अ स्पीकर मेरे पास भी बहुत स्कूल्स कॉलेजेस के लिए एज अ स्पीकिंग मुझे एज अ स्पीकर वो लोग इनवाइट करते हैं, और मैं जब बच्चों को एड्रेस कर रहा होता हूँ, एक शिष्य नाम का जो शब्द है ना, वो अभी आज के टाइम में वो उसका मीनिंग बहुत डिफरेंट हो गया, और हर बंदा अपने हिसाब से अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको शिष्य का वर्ड का मीनिंग बना लेता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप एक गुरुकुल चलाते हैं, आपके लिए शिष्य की परिभाषा क्या है? हाँ, क्योंकि आप शिष्य रहे हैं, एक आप शिष्य रहे हैं और अब आपके पास शिष्य है। जी जी, हाँ जी। 3 शब्द है, एक विद्यार्थी, शिष्य, अंतेवासी। 3 शब्द हैं। विद्यार्थी जो विद्या अर्जन करना है, जिसका उद्देश्य होता है। दूसरा शिष्य, वो भी विद्या का अर्जन करना चाहता है, लेकिन शासन में रह करके, अनुशासित होकर के, है ना। जो गुरु का अनुशासन होता है कि क्या तुमको सुबह से लेकर शाम तक तुमको क्या क्या करना है, तो जो अनुशासन का पालन करते हुए अपना जीवन जीता है उसको शिष्य कहा जाता है। तीसरा, विद्यार्थी भी है, शिष्यत्व भी है, लेकिन कई शिष्यों को गुरु के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो शिष्य ऐसे जिनको विद्यार्जन भी कर रहे हैं और शासन अनुशासन का भी पालन कर रहे हैं, और उनको गुरु के सानिध्य में रहने का भी एक सौभाग्य प्राप्त, उनको कहा जाता है अंतेवासिन। आपने देखा होगा कि हमारे इतिहास में भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ, है ना, आश्रम में रहे। वहां उन्होंने जो यज्ञशाला थी उसकी क्या कहते सुरक्षा दी, और वहां रहते थे, वो सेवा भी करते थे। इवन भगवान कृष्ण वो भी सुदामा जी के साथ अपने गुरुकुल में रहते थे, सांदीपनी आश्रम में। वहां पर भी माँ के जो गुरु माँ थी, उनके लिए भोजन बनाने के लिए सामग्री लानी पड़ती थी, ईंधन वगैरह, तो वो वहां रह करके विद्यार्जन करते थे। तो ये हमारी परंपरा है, हमारी प्राचीन परंपरा है, इतिहास की। गुरुकुल में रह करके जिन्होंने अपना शासनात्मक जीवन जिया है, उनको एक क्या कहा जाता है, एक अंतेवासी कहा जाता है। तो ये शिष्य जो है, भले ही अंतेवासी नहीं रह पाता, लेकिन गुरु के दिए हुए मार्गदर्शन है, शास्त्र के जो नियम है उसका पालन करता हुआ अगर विद्या अर्जन करता है, और गुरु के शब्दों का पालन करता हुआ, शास्त्र का नियम अनुसरण करता हुआ अगर जीवन जीता है, अपनी खूब विद्या अर्जित करता है, उसमें कोई ये नहीं, तो वो व्यक्ति जो है उसको शिष्य कहा जाता है। शासन अनुकूलम व्यवहार, शासन के अनुकूल शास्त्र व्यवहार और करने वाला। हाँ, शास्त्र का अनुकूल व्यवहार और गुरु के अनुकूल व्यवहार, तो वो शासन से रहने वाला गुरु जो है शिष्य कहलाता है।
अमेजिंग गुरुजी, ये शायद ही हम में से बहुत लोगों को ये चीज पता थी। अब मेरे दिमाग में एक क्यूरियस क्वेश्चन आया, एकलव्य जी। कौन सी कैटेगरी में थे? हाँ हाँ, बिल्कुल, वो भी इसमें कम नहीं था उसके अंदर, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी थी उसके लिए कि हम्म, उसको जो है गुरु के गुरु ने सानिध्य में। रहने का उसको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हम्म, लेकिन उसने अनु ये जो आ, अंतेवासी से कम नहीं था, हम्म, क्योंकि वो अपने घर नहीं गया, हम्म, जंगल में ही रह करके अपनी पर्णकुटी बना करके वही गुरु का पुतला बना करके उनके सामने उसने जो है जो प्रैक्टिस जो अभ्यास किया है, तो वो भी कोई कम नहीं था। हम्म, केवल वहां पे केवल ऐसी परिस्थिति के कारण उसको जो है वहां पर रखा नहीं गया था, लेकिन वो भी मैं कहूंगा कि पूर्ण पूर्ण रूप से शिष्यत्व भी था हम्म, और वो अंतेवासी भी था, इसलिए उसके अंदर कोई कमी नहीं। तो इसका एक उदाहरण आपको बताता हूँ एक हम्म, लगेगा कि अर्जुन द्रोणाचार्य के सबसे अग्रगण्य एक शिष्य थे हाँ जी। और बहुत ब्राइट विद्यार्थी थे उनके। लेकिन जैसे एक दिन अर्जुन के साथ द्रोणाचार्य के जंगल में घूमने गए, तो जाते जाते क्या हुआ कि जिस तरफ ये एकलव्य बह रहा था, उसी तरह से और ये जो जा रहे थे गुरु के साथ में, द्रोणाचार्य के साथ में, ये पांडव वगैरह, हम्म, तो हुआ क्या कि इनके साथ एक कुत्ता था हम्म, और ये कुत्ता उस कुटिया की तरफ गया जिस तरफ ये एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा था, हम्म, और कुत्ता वहां पर भौंकने लगा। जिससे वो तीर चला रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, तो कुत्ता उसको भौंक। तो ये एकलव्य का कि ये कहाँ से आया इसमें, तो उसने क्या किया, उसमें से एक तीर सेलेक्ट किया और वो सीधा उस कुत्ते की तरफ लगा दिया, और उस कुत्ते को घाव नहीं हुआ, खून नहीं निकला, कुत्ता मरा नहीं, लेकिन सीधा उसके मुंह में जाके फंस गया। हम्म, और मुंह में जाके फंसने के बाद वो कुत्ता बिल्कुल भौंक नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया, और वो पूंछ हिलाता हुआ फिर गुरु के पास द्रोणाचार्य के सामने गया। जैसे वो कुत्ता वहां गया और अर्जुन ने और द्रोणाचार्य ने देखा कि ये क्या हुआ भाई, तो इसके अंदर जो एक तीर जो बाण के साथ में छोड़ा हुआ तीर जो है उसके अंदर फंसा हुआ। हम्म, अब अर्जुन को भी ये विद्या पता नहीं थी कि किसी को हार्म किए बिना भी ऐसा कोई तीर चलाया जाता है और उसका मुंह बंद किया जाता है ना। हम्म, तो उस समय भी अर्जुन को बड़ा आश्चर्य लगा कि बाप रे, ऐसी भी कोई विद्या है। तो उस समय कहा जाता है कि हो सकता है गुरु के प्रति उनके मन में आया कि गुरु ने मुझे विद्या पढ़ाई, हम्म, और वो जो है द्रोणा एकलव्य ने करके दिखाया। हम्म, तो एकलव्य के अंदर कोई कमी नहीं थी, ही वाज अ परफेक्ट पूर्ण जो अनुशासित रहता हुआ एक बिल्कुल शिष्य था, अंतेवासी था, शिष्य था। अंतवासी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुजी, मेरा अगला है सवाल आपका, क्या मानना है इस शब्द के बारे में जिसका नाम है शिक्षा? हाँ हाँ, बिल्कुल, ये शिक्षा जो है इसमें दो है, उसको विद्या को कहते हैं, एक पराविद्या है, अपराविद्या। इसके अंदर दो भाग होते हैं, परा और अपरा। अपरा विद्या उसको कहते हैं जो मुझे, जिसके अंदर कहा था शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, ज्योतिष, कई सारी चीजें जिसके अंदर हम लोग बड़े प्रकांड विद्वान बन करके हमको बड़ी बड़ी डिग्री मिलती है, और जिससे कि हमको इस लौकिक इस समाज में बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, और हमें हो सकता है कि हमको बड़ी बड़ी नौकरी भी मिलती है। तो ये भी विद्या है, शिक्षा है, लेकिन ये हो गई अपरा विद्या, मतलब मुझे इसी समाज के अंदर मुझे काम में आती है। दिस इज माई ब्रेड एंड बटर हियर, ट्रू। बट this after my departure from this life, this will be only here, ये यहीं सिमट के रह जाए। देखिए दूसरी विद्या है जो शिक्षा है, जो मैंने गुरु से अथवा शास्त्र से पाई, तो है पराविद्या। पराविद्या वो है कि वो इसके अलावा वो अपने बारे में बता सकती, व्हाट इज यू, दिस इज योर आइडेंटिटी। ये तुम 5 फुट के हो या 5.5 फीट के हो, इतना ही व्यक्तित्व है तुम्हारा, कि इसके अलावा भी कुछ तुम्हारा अस्तित्व है। तो ये शास्त्र बता सकता है कि मैं इस शरीर के पहले भी था, इस शरीर को छूटने के बाद में भी रहूंगा, किस रूप में रहेगा, क्या रहेगा, वो फिर शास्त्र बताता है। तो जो विद्या उन चीजों को सिखा सकती है ना, इस लाइफ के बाद में भी मेरा क्या अस्तित्व हो सकता है, उसको जो समझा सकती है,
उसका नाम है पराविद्या। पराविद्या। यया विद्या तद अक्षरम अधिगम्यते। जिस विद्या से जिस शिक्षा से मुझे वो आत्मज्ञान प्राप्त होता है उसको कहा जाता है पराविद्या। तो इस शिक्षा के अंदर जो है पराविद्या और अपराविद्या, और इसी को लेकर के हम इधर रहते ही सिमट करके रहते, लेकिन हमको अध्यात्म जो है, शास्त्र है, गुरु है, हमको उससे भी आगे ले जाते कि नहीं, इस जीवन के बाद में भी हमारा जो अस्तित्व होता है उसके बारे में मुझे समझना है और उसकी तैयारियां भी करनी है। तो वो जानने की जो शिक्षा है वो है हमारी पराविद्या, जो बहुत बढ़िया उपनिषद से गुरुजी, आपको मिलती है। बहुत बहुत बहुत। आई थिंक इट्स अ अमेजिंग डेफिनेशन। गुरुजी, आखिरी शब्द है सेवा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो एक सेवा एक ऐसी चीज है हम्म। जो व्यक्ति को जमीन पे रखती है। हम्म। नॉर्मली हम अगर कुछ थोड़े किसी फील्ड में अगर थोड़े अग्रगण्य होते हैं, हमारे पास भगवान ने मुझे बोलने के लिए कुछ अच्छी एक शब्द दिए है और मैं बोल करके लोगों को, समाज को प्रभावित करता हूँ, तो मेरे अंदर से एक स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर एक अस्तित्व आता है कि मैं कुछ हूँ। हम्म। तो वो जो है कुछ हूँ, तो उससे क्या होता है कि मेरा हो सकता है मेरे अंदर का जो अहंकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन एक सेवा ऐसी चीज है, आपको जो है बिल्कुल आपको एकदम जमीन पे लाती है। हमको, मैं आपका अनुभव बताता हूँ, खुद का अनुभव बताता हूँ। जब हम ऋषिकेश गए थे 82 में, 1982, हम्म। हम लोग आनंदी से ऋषिकेश गए थे। तो वहाँ हमारे पास कुछ एड्रेस नहीं था, कुछ नहीं, लेकिन कहा सुना था कि वहाँ अच्छी शिक्षा होती है और व्याकरण पढ़ाया जाता है, वेदांत की शिक्षा होती है। तो हम वहाँ गए थे। तो वहाँ हमको जैसे वहाँ रहने के लिए जगह नहीं होती थी, आश्रम होते थे लेकिन सिलेक्टेड लोगों के लिए मिलता था। तो वहाँ हमने देखा कि पहले जाने के बाद पहले हमको ये पढ़ना है, हमको वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो सुनेंगे महात्मा जी, लेकिन पहले आपको जाते हाथ में झाड़ू पकड़ाएंगे, ब्रह्मचारी जी पहले तो आपको सेवा करनी है। हम्म। क्योंकि उनको पता है पहला जो पाठ है यही है कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि नहीं, तुम्हारे अंदर वो अहमियत है कि नहीं, तुम झाड़ू लेकर के दूसरे के सामने भी अपने आप को एक सेवा के लायक हो गए। हम्म। सेवा तब होती जब अपने अपने अस्तित्व का सारा एजेंडा है, अपना जो अहंकार है, मेरा जो टाइटल है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, चाहे मैं धन के बारे में, मेरे मन के बारे में, चाहे मेरे ज्ञान के बारे में, जो मुझे अहंकार होता है उसका जो है पूर्ण रूप से जहाँ शिथिल होता है और मैं एक अपने आप को पूर्ण रूप से उस सेवा में जुट जाता हूँ, तो उसका अर्थ होता है सेवा की मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। वो हम सेवा में मैं अपने लिए नहीं, मेरी अपनी तो खुद करूंगा, लेकिन मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूँ, और मैं सेवा करता रहूंगा तो मेरा जो है अहंकार बिल्कुल धरातल पे रहेगा। और अहंकार आदमी को आध्यात्म में बहुत क्या कर सकता है, आपको इज डिराइव फ्रॉम योर मेन एम। तो मेन जो गोल होता है मेरा, उससे वो अलग ले जा सकता है। इसलिए कभी भी अहंकार न हो अपने अस्तित्व का, अपने विद्वत्ता का। तो इसलिए सेवा जो है उसके लिए बहुत जरूरी, और सेवा जिसके लिए उपयोगी हो दूसरे को। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ये आई थिंक my viewers will get a lot of wonderful insight about these words, because ये एक बहुत confusing है। इनके वर्ड लोग अपने अपने मायने निकालते हैं और अपने अपने मायनों के हिसाब से उसको इस्तेमाल करते हैं। I think thank you so much. Now coming to the next phase of the interview, which is called a rapid fire round. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अब मैं आपसे एक शब्द बोलूंगा, हाँ, उस शब्द को सुनने के बाद आपके दिमाग में जो पहला शब्द या नाम या कोई भी एक सेंटेंस आता है, आप उसको बोलेंगे, सोचेंगे नहीं ज्यादा इस बारे में। अच्छा। हाँ। सो मेरा पहला शब्द है आपके लिए गुरुजी, सेल्फ मेड। सेल्फ मेड, जो व्यक्ति अपने आप को हर परिस्थिति में खड़ा होकर के परिस्थिति के अनुसार अपने आप को प्रेजेंट करता है इस समाज के अंदर, वही सेल्फ मेड कहा जा सकता ठीक है। गुरुजी, आप किसी का नाम भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं आगे वाले शब्दों में, अगर आपके दिमाग में कोई इससे रिलेट होता है, आप उसको नाम भी ले सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई ब्यूटीफुल वर्ड आपके दिमाग में आता है, वो भी बोल सकते हैं। एक शब्द या एक सेंटेंस।
ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दूसरा शब्द है गुरु। हाँ हाँ, गुरु जो मेरे, जैसे दो शब्द है गु एंड रू। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। गु का अर्थ होता है अज्ञान, रू का अर्थ होता है ज्ञान। जो मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश देता है मेरे जीवन में, उसको गुरु कहलाते हैं। क्या बात आप है। भले आज के समय में मेरे एक गुरु है, मुझे एक कंपनी के लिए गुरु है, मेरे फाइनेंस के लिए गुरु है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो मेरे जीवन के अंदर पड़ा हुआ अंधकार है उसको हटा करके प्रकाश देते उसको गुरु गुरु कहा जाता कहते हैं। फैमिली। है। हाँ, फैमिली एक जरूरी नहीं कि केवल पति पत्नी और जो पैदा हुए बच्चे, जो संतान वही परिवार होता है। जहां भी मैं रहूं उस वातावरण के अनुकूल, जिस परिस्थिति के अनुकूल मैं मेरा जो प्यार और मेरा अपनत्व देकर के लोगों को अपनाता हूँ, हाँ, वही मेरा पक्का परिवार माना जा सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि मुझे मेरे अपने ब्लड रिलेशन ही हो, जरूरी नहीं। जहां जहां आप रहोगे, इवन किसी किसी के जो जंगल में रहते हैं उनका, अभी हमारे यहाँ पे हम भोजन करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्क्वेल आते हैं, पक्षी आते हैं, है ना। हमारे पास गाय है ना, बछड़े है। तो दिस इज आवर फैमिली हियर, यू नो। जो कुछ बच्चे रहते हैं, तो जरूरी नहीं कि अपने ब्लड रिलेशन से ही जो रहते हैं वो ही मेरे परिवार में जाए, जहाँ पे रहता हूँ और उनके साथ एक प्यार से रहता हूँ और मेरा मधुर रिश्ता रहता है उनके साथ, वो मेरा परिवार कहा जा सकता वेरी गुड गुरु जी, बहुत बढ़िया। एजुकेशन। है। हाँ, बस वही अगेन शिक्षा का आ गया। सो एजुकेशन वही दिया जाए कि जो मैं आज के समय में जो एजुकेशन कहता हूँ कि मुझे ब्रेड बटर की जो व्यवस्था कराता है वो एजुकेशन होता है। लेकिन वो तो यहाँ के लिए सही है, लेकिन एजुकेशन वो हो जब हम कहते हैं कि भगवान राम को, है ना, ऐसा एक एजुकेशन मिला था। वो पहले प्रात उठे रघुनाथा माता पिता गुरु देवन्न माता, जो सुबह उठ करके पहले अपने माता पिता को गुरु को प्रणाम करता था, तो उनको ये एजुकेशन मिला था, ये शिक्षा मिली थी। तो पहले हमको जो है बड़ों को नमस्कार करना, इज्जत देना, और हमेशा जो है अपना फर्ज निभा करके मैं आपका एक सेवक हूँ और मैं आपके लिए मैं आशीर्वाद का पात्र हूँ आपके लिए, तो मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ मेरे इस कर्म से। तो वो एक अपने आप में क्या बन जाता है, तो वही शिक्षा है जिसने मूल्यों का अवलोकन करके, मूल्यांकन करके अपनी जो, हु हैज गॉट वैल्यूज ऑफ वैल्यू फॉर द वैल्यूज, वैल्यू फॉर द मूल्यों का वैल्यूज। जिसको, हाँ, तो वही असली एजुकेशन कहा जाता है। वंडरफुल गुरु जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वर्ड है पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी। जी, तो पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने अपना सर्वस्व जो है इस इस संस्कृति के लिए, वैदिक परंपरा के लिए अर्पित किया है। और उन्होंने पहले से ही कहा था कि जब हम नॉर्मली जो हम लोग जीते हैं तो सबका अपना अपना एजेंडा होता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन इसका एजेंडा केवल जो है परोपकाराय सताम विभूतय, स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा, पेड़ अपने फल को खुद नहीं खाते, स्वयं न पिबंती जलानि नद्यः, जल नदियां खुद नहीं पीती है। परोपकार आए, गाय जो दूध देती है वो खुद के लिए दूध नहीं देती है। इस तरह से परोपकाराय सताम विभूत है, जो केवल मात्र परोपकार के लिए जिन्होंने अपना जीवन जिया है, बिताया है, तो ऐसे मैं कहूंगा कि हमारे गुरु जी स्वामी दयानंद सरस्वती। One word or sentence which comes in your mind with my thought of India bounce back. हाँ, तो मेरा ये कहूंगा कि मैं अगर मेरे आने वाली पीढ़ी को इस वैदिक परंपरा का कुछ अंश उनके जीवन में, उनकी शिक्षा में अगर हम देते हैं, और ये जो वैल्यू है, वैल्यू फॉर द वैल्यूज, Values. जो मेरे पास कीमती जो धर्म है उसके बारे में धर्म है, तो अवश्य मुझे विश्वास है कि इंडिया विल बाउंस बैक when you add this education in our
this modern education. So therefore, I have nothing to against for the modern, but we are lacking this our Guru Parampara or what the Vedic Parampara Shiksha. If that comes, I'm sure this our India will bounce back. They will have value for everything. Wonderful. One word which comes in your mind when you uh, listen this word called India. हाँ हाँ भारत Bharat. भा और रथ दो शब्द है इसमें भा का अर्थ होता है प्रदीप प्रकाश मतलब ज्ञान और जिसके अंदर मेरा देश रथ है इज ऑलवेज देयर ही इज बिजी टू अर्न द नॉलेज ज्ञान पाने के लिए और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए तो भाई ज्ञानम और रथ इच जो इंडिया जिसके अंदर हमेशा क्या लगा हुआ है तो जिस भारत देश में ज्ञान है और ज्ञान के अंदर ही लोग अपना जीवन जीते हैं उस देश को कहेंगे भारत इंडिया क्या बात है. Thank you, Guruji. That was really awesome. I think हाँ बहुत ही आपने क्रिस्प अच्छे जवाब और एक व्यूअर्स को एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा इन सब सोच से. आई एम रियली श्योर. अब हम चलते हैं अपने राउंड 3 की तरफ जो कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है. मान ले अगर ऐसा मान लेते हैं तो सो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है. पहला सवाल है मान लीजिए आपको ऑफर आता है कि आपको एक मिनिस्टर बनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का आपको मिनिस्टर बनाया जाता है. कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आप प्रायोरिटी पे मिनिस्टर बनते ही इंप्लीमेंट करना चाहेंगे? तो इसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते लेकिन अगर मेरे पास जो भी आज पावर है उसका पावर में अधिक से अधिक पहले तो जो नीडी है पहले उन व्यक्ति को उसकी जो है पूर्ति हो जाए जिनको जिसकी जरूरत वो मिल जाए और अपने दायरे के अनुसार जो जो मैं एक इस धर्म के अनुसार और इस वैल्यू के अनुसार कि जहां जहां हम अपने इस धर्म को अप्लाई कर सकते कि जो वैदिक धर्म है ना वहां पर हम उसको मतलब उसको अप्लाई करेंगे. और तीसरा जो फाइनल वाला है जिसके अंदर मुझे अधिक से अधिक ऐसे कुछ अपना व्यक्तित्व देख करके अपना खुद का जो जीवन देख करके मैं चाहूंगा कि अपने जैसे और ऐसे हर एक जीवन मनुष्य के जीवन में ऐसे वैल्यू उसके अंदर उतारी दी जाए जिसके अंदर जो है लोग इसको देख करके अपने आप ही आने वाली पीढ़ी जो है उसको सुधर क्योंकि यहाँ से वी आर मिसिंग द मेन करंट. तो वो जो है वैल्यू सिस्टम अगर हम उसके लिए कुछ करेंगे तो दैट विल बी मोर प्रायोरिटी टू इंट्रोड्यूस द वैल्यू सिस्टम. तो these three things. थैंक यू. सेकंड क्वेश्चन. अगर वो जैसे हम बच्चों को बोलते हैं अगर आपको मैजिक वैंड मिल जाए या अलादीन का चिराग मिल जाए तो गुरुजी अगर आपको एक ऐसी पावर मिल जाए कि आप अपने हर डिसाइपल को अपने हर एक स्टूडेंट को आप एक पावर दे सके तो वो पावर क्या होगी? उनको हम एक ही पावर देंगे कि आप जो है अपने आप का आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए यू हैव कम फॉर दिस वर्ल्ड और व्हाट वो अपने आप उनको एक दर्पण है ना दर्पण के अंदर क्या देखता है व्यक्ति खुद को देखता है. तो ऐसा उनको एक खुद का ही दर्पण मिल जाए कि जो अपने आप को देख सके कि व्हाट इज माय लिमिटेशन एंड व्हाट इज माय प्लस पॉइंट. मैं उनको ये देना चाहूंगा कि तुम अपने आप को खुद के शीशे में देखने की एक कैपेसिटी अर्जित करो कि भाई मुझे मेरा कर्तव्य क्या है और मैं हूँ क्या. तो वो जो है खुद उनको एक दर्पण और मिरर एक तरह का वो मिल जाएगा और जिससे कि वो खुद अपने आप को देख सके. गुड. गुरुजी अगर आपको एक पावर मिलती है और उस पावर में मतलब वो इसलिए कि आप या तो कोई बदलाव चेंज ला सकें या डिमोलिश कर सकें वन बैड प्रैक्टिस फ्रॉम आवर सोसाइटी वो क्या होगी? हाँ बैड जो आज के कारण जो परिवार के अंदर ये बड़े बड़े क्या कहते हैं गैप आते हैं पति पत्नी है माँ बाप बच्चे है उसके अंदर एक जो ऐसे
कुछ विकृतियां है, जो हैबिट्स है, जिसके कारण परिवार तबाह होते हैं, तो उन परिवारों के जो अंदर जो इस तरह से जो बैड हैबिट्स है, उस बैड हैबिट को पहले बैन लगा सकते कि तुमको, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन डू समथिंग गुड फॉर योर फैमिली। तो वो अगर हम लोग वो सिस्टम लाएंगे, धर्म अधर्म का नाश और धर्म की सुरक्षा, धर्म का पालन, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो जो विकृति वाले जो अनभ्यासित और जो क्या कहेंगे एक प्रकार की गलत आदतें हैं, उसको छुड़वा करके उनकी आदत दें, अच्छे आदत दें, ताकि उनका स्वास्थ्य और उनका परिवार एकदम स्वच्छ तरह से, अच्छी तरह से रहे और परिवार में बहुत मंगल आ जाए, मैं कह सकता हूँ। गुरुजी, अब हम चलते हैं, बहुत बढ़िया जवाब। अब हम चलते हैं अपने राउंड 4 की तरफ, और अब बात करते हैं इस पैंडेमिक, इस कोरोना वक्त में जो लोगों के साथ हुआ। आपने भी शायद इस तरीके का एक सिचुएशन आपने भी पहली बार देखा, बहुत लोगों ने भी शायद पहली बार देखा है। आपने अपने अपने जीवन में अलग अलग तरीके के हमने शायद उतार चढ़ाव देखे। पर गुरुजी, मेरा आपसे ये सवाल है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस आपके जीवन में 23 मार्च 2020 उस दिन का, आपके लिए, आपके शिष्यों के लिए, पूरी संस्था के लिए, वो दिन आपके लिए क्या मायने रखता है? 23 मार्च 2020। देखिए, हम एक ईश्वर का जो हम उसको आशीर्वाद कहे या उनका एक प्रकार का अभिशाप कहे, हम दोनों को भी एक ऐसे इसमें लेते हैं, कहा जाता है एक प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, एक मीठा प्रसाद, दूसरा कड़वा प्रसाद। क्योंकि हम हमेशा मीठा के लिए ही दौड़ते हैं कि मुझे मीठा मिले, लेकिन जरूरी नहीं। हम मंदिरों में जाते हैं ना, तो मंदिर में पुजारी से प्रसाद लेते हैं, तो जरूरी नहीं तो हमेशा लड्डू देगा तो बर्फी देगा। वो आपको जो है तुलसी का पत्ता भी दे सकता है, वो आपको कुमकुम दे सकता है लगाने के, विभूति दे सकता है, चंदन दे सकता है ना। तो कुछ भी दे रहा है तो वो हमारे लिए क्या होता है, प्रसाद होता है। तो मंदिर में जाकर के हम पुजारी को कभी भी कैन नॉट डिमांड गिव मी सम स्वीट, नो, प्रसाद इज प्रसाद व्हिच कम्स फ्रॉम द ईश्वर। भगवान से जो आता है मेरे जीवन में, उसको चाहे कड़वा हो चाहे मीठा हो, प्रसाद देना। अब द सेम वे जो अभी जो इस सृष्टि का क्रम है और ईश्वर के इस सृष्टि में जो हम लोग है, इसी समय में इस प्रकार की ये जो महामारी कही जाती है, उसके अंदर अगर ये महामारी का एक प्रकार का एक दौर है, तो उसके अंदर मुझे घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? सावधानी रखनी है, क्योंकि भगवान ने विवेक दिया है। जानवरों से हम अपेक्षा नहीं कर सकते, हम विवेकी है, भगवान ने हमको विवेक दिया है, तो वी हैव गॉट मोर रिस्पांसिबिलिटी देन अदर्स। So we can be careful, we can be very much alert, at the same time no worry, because if हम अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवन को मानते हैं, क्योंकि तीर जो निकलता है ना, उसका स्पीड वो छोड़ने वाले के ऊपर कहाँ जाके गिरने वाला है, उसके जो गिरने की जो स्थान है उससे 1 इंच भी आगे नहीं जाएगा ना, पीछे रहेगा। तो मेरे जीवन की डिस्टेंस है, भगवान ने जो प्रारब्ध बनाया है उसके अनुसार अगर मुझे इसी दौरान मुझे ले जाने वाला है, तो कोई रोक नहीं सकता है। और मैं इसमें से नहीं जाने वाला, तो मुझे कोई भी बल्ला हिला नहीं सकता, क्योंकि मेरा अपना प्रारब्ध। तो इसलिए इसको मन में रख करके हम चाहते कि निर्भय होकर के रहे और निडर होकर के रहे, साथ साथ पालन करे और जितना हो सके दूसरों को मदद करे। और यही एक भगवान ने हमको अलर्ट होकर के भेजा है। तो समय का साथ रह करके, समय के साथ रह करके आप अपना ध्यान रखें। और एक परिस्थिति है और परिस्थितियां आती है और वो बदलती है। आगमा अपायिनः अनित्या, ये जो है आती जाती है, तो उसका आपको धैर्य आपके अंदर और साहस और एक प्रकार का निर्भयता रही। तो इससे हम लोग, और यही हमको भगवान ने सिखाया कि तुम जो है आपके अंदर कितनी निर्भयता है, कितना सामर्थ्य है और कितना धैर्य है, यही हमने भगवान से सीखा है। यही मैं चाहूंगा लोगों को बताएं।
गुरुजी, आपका एक सोचने का तरीका, आपका विवेक, वो बहुत है, आपकी तपस्या है, आप चीजों को एक अलग अंदाज से देख सकते हो। लेकिन बहुत लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, चाहे वो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, अनुयायी हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, इन लास्ट 100 दिनों के अंदर हम्म, आपसे लोगों ने किस तरीके की समस्याएं पूछी? क्योंकि मैं ये पर्सनल मानता हूं कि इस वक्त ना एक सिचुएशनल क्राइसिस था लीडर्स के लिए भी, आप जैसे हाँ लीडर्स के लिए भी, क्योंकि कई चीजों को हम भी फ्यूचर में नहीं देख पा रहे थे कि आने वाला फ्यूचर कैसे होगा। ये हाँ। लोग पूछते थे कोरोना कब खत्म होगा, लोग पूछते थे ये सिचुएशन नॉर्मल कब होगी, बिजनेस नॉर्मल कब होगा। मैं जानना चाहता हूँ पिछले लगभग 100-120 दिनों में किस तरह की समस्याएं लोग आपके पास लेकर आए और आपने उनको कैसे एक कहते हैं धैर्य बांधा उनका। हाँ, तो उनको एक ही कह सकते हैं और कहते आ रहे हैं हम लोग कि देखिए, पिछले जब तक मैं जन्मा हूं तब से क्या क्या जीवन में घटा है तो हम स्पष्ट बता सकते हैं कि ये हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ। और यही तो सीक्रेट है भगवान का कि जो आगे की गुंथी जो है ना, वो हमेशा हम अपने पास ही रखते हैं। हम्म। लेकिन मैं लोगों से, मतलब मेरी अपील ये रहेगी कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, कि जीवन जो है आशा से ही चलता है। हम्म। ये आशा रूपी नदी हमेशा बहती है, और हम उसी आशा से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि निराश होकर के जीवन में कभी आनंद नहीं आएगा। हम्म। अब जो जो परिस्थितियां आती है, अगर ईश्वर के माध्यम से आती है तो मेरे अच्छा के लिए आती है। वो कभी मुझे, क्योंकि अगर मेरा इसमें ही यहाँ से जाना है तो मेरे अच्छे के लिए होगा। तो वो अगर मैं देखता हूँ कि ईश्वर ने कभी मेरा बुरा नहीं किया हूँ, कि जो जो क्या मेरे अच्छा के लिए किया है, और ये मेरी अगर पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, तो ये जो है नेगेटिव थॉट ला करके आप अपने आप को चिंता में और अपने इसमें भय में इसमें डालने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैंने वैसे पहले भी कहा कि सावधानी आवश्यक है। आपका बहुत विवेक जागरूक रहे हमेशा कि मैं क्या कर रहा हूँ परिस्थिति के अनुसार। लेकिन निर्भय होकर के अपना जो कर्तव्य उसको पूर्ण करते रहिए। और मेरे जीवन में अगर पिछले जैसे जो हम पहले जीवन जिया है वैसे जीवन आने का है, तो बिल्कुल वो आकर के रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और बिल्कुल आप निडर होकर के, निर्भय होकर के, स्वस्थ होकर के आगे बढ़े। और यही ईश्वर का आदेश है। और आगे जैसा जैसा फिर उनका मार्गदर्शन मिलेगा वैसा हमको सामने का रास्ता दिखाई देगा। बहुत बढ़िया गुरुजी। आ, गुरुजी, मैं आपसे पहले भी इस चीज का, अभी इनिशियली हमने पहली बातचीत करी तब भी जिक्र किया, मैं खुद फेवर में हूँ एक चीज का, पर्सनली मैं उस चीज के फेवर में हूँ कि मैं चाहता हूँ कि गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को, जैसे अभी पीछे हमारे राज्यसभा में ये स्वामी जी हाँ। बात कर रहे थे कि संस्कृत यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, करेक्ट, उसके ऊपर बातचीत चल रही थी। मैं खुद एक फेवर में हूं कि गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप आज मेरे व्यूअर्स को आज ये समझाने की कोशिश करें कुछ पॉइंट्स के थ्रू, हाउ अ गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम कैन क्रिएट अ बेटर स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन फॉर आवर न्यू इंडिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने इसका अनुभव लिया है। हमने जो पहली जो हमारे इतिहास देखा है, और जिन जिन लोगों ने अपने गुरुकुल में रह करके ये गुरु के पास से वेदों की शिक्षा ली है, उनको जो है वैल्यू का जो है, जो धर्म है और जो मूल्य है, उन मूल्यों का उनके अंदर जीवन में जो तथ्य है, वो उन्होंने पूर्ण रूप से अपने जीवन में क्या क्या उसको संग्रहित किया। तो वो जो है आज भी, आज के समय में उसकी बहुत आवश्यकता है। और वो अगर आता है तो देखना आपके अंदर, जैसे कहा कि आज के समय में अब जो वृद्धाश्रम आपने नाम सुना है, हम्म। तो जो आश्रम जिन वृद्धों के लिए होता है, हम्म। और कभी अपने पूर्व इतिहास में कभी इसका नाम नहीं था, क्योंकि हर एक एक पुत्र के लिए, हाँ, अपने माता पिता की सेवा का एक सुंदर उसके जीवन में एक मूल्य था, कि मैं मेरे माता पिता को अंतिम, और आपने सुना होगा श्रवण कुमार जो है हम्म। अपने कंधे पर लेकर के तीर्थ यात्रा ले गया। हम्म। तो जो वैल्यू है अपनों बड़ों के लिए, अपने गुरु के लिए, है ना, ईश्वर के लिए, उसके प्रति जो वैल्यू है, वो वैल्यू सिस्टम तभी आ सकती है वो जब आप
वो जो गुरुकुल में रह करके गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान जो अपने जीवन में उठेर सके। लेकिन आज की जो है केवल दुकान में ब्रेड एंड बटर के लिए जो जितना हो सके उतना मैं करता हूँ, और वो जो बड़ी खाई है, जो बड़ा गैप है, उसके कारण जो है हम अभी भी उससे बहुत कोसों दूर है। और बिल्कुल हम धैर्य के साथ, विश्वास के साथ रह सकते हैं, और हमारे भगवान का, ईश्वर का जो है उसके ऊपर पूर्ण अनुग्रह रहता है कि नहीं, जिसने धर्मो रक्षति रक्षिता, जिसने धर्म को सुरक्षित किया है, तो वो धर्म भी उसकी रक्षा कर सकता है। तो अगर मैं अच्छे धार्मिक बनता हूँ तो मेरा ही धर्म मेरी सुरक्षा करेगा, मेरी ही नहीं बल्कि मेरे सारे अनुयायी को और मेरे इस समाज की सुरक्षा करेगा। तो ये उसके अंदर पूर्ण जो है सामर्थ्य है, शक्ति है, और वो बिल्कुल मेरे गुरुकुल के जो सिस्टम है उसके अंदर इसका पूर्ण जो है हम कहेंगे कि उसकी शक्ति है, और वो क्यों नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती। तो वो जो है उसमें ही एक क्या क्या लैकिंग है, और वो आता है तो जरूर देखना बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है इसमें। जरूर गुरुजी। और मैं आपको खुद से पर एज एज इंडिविजुअल मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि कहीं पर भी मैं किसी काम आ सकूं इस चीज के लिए, हाँ, मैं आपके साथ जुड़कर कुछ भी ऐसा अच्छा एक इनिशिएटिव शुरू कर सकूं, मैं आपके साथ हमेशा करना चाहूंगा। मतलब मैं चाहता हूं कि लोगों को इस एजुकेशन बेस्ड सिस्टम के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो। जी जी। गुरुजी, एक और मेरे दिमाग में एक एक सवाल है जो शायद मेरे को पहले पूछना चाहिए था, बट मेरा ये सवाल है, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में, जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में जाकर आपने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी हैं, आप एज स्पीकर वहां गए हैं। आपका क्या अनुभव रहा, कैसा उस एजुकेशन सिस्टम के बारे में, या आपने वहां पे किस तरह की वार्तालाप करी, और कैसे लोगों ने उस चीज को एड्रेस किया या समझा या सीखा? इसी हर जगह अपना अपना एक वर्चस्व है, अपने अपने जगह अपनी चीजों का मूल्य है। और ऐसी बात नहीं, हमारे भारतीय मूल्यों का भी मूल्य है वहां पे भी। लेकिन जो क्या कहा जाता है, जिसके अंदर अधिक से अधिक लोगों का जो झुकाव है, जो हम कहते हैं भौतिकवाद, तो उस भौतिकवाद के अंदर अधिक से अधिक जिनको जिस तरह से इतनी शॉर्ट है नो, मैं कम समय में अधिक कमाऊं, हम्म, कम समय में अधिक बड़ा डिग्री वाला बन जाऊं। हम्म, तो वो जो है, वो जो होड़ है, हम्म, वो होड़ मैंने देखी है। जो देखिए। प्रतिस्पर्धा है, शॉर्टकट में मैं कम से कम समय में जो है बड़ा बन जाऊं और अधिक धनवान बन जाऊं, हम्म, तो वो देखा मैंने। और क्योंकि उनके लिए वही सब कुछ है। आज के समय में कोई भी अगर छोटे समय में, छोटे बाल अवस्था में अगर बहुत सारी डिग्रियां करता है तो वो इज द अचीवर है ना, इज द विनर। और बाहर जाकर के छोटे बिजनेस के अंदर जो है बहुत जल्दी वो बहुत कमा के बड़ा होता है, तो उसके लिए वो बड़ा माना जाता है। तो आज की जो दिशा है, आज की जो परिपाठ है, और आज का जो एक प्रकार का प्रवाह है, उसके साथ लोग बह रहे हैं और उसी के साथ तैर रहे हैं। तो नथिंग रॉन्ग, बट कभी समय आएगा तो मूल्यांकन करेंगे, तो शायद कहेगा कि वो सब कुछ जो है मेरे जीवन में नहीं था। जो जीवन मैंने दूसरों के लिए दिया, दूसरे के सेवा के लिए दिया है, वो जीवन कुछ अलग था। तो वो तो मैंने रहता है भौतिकवाद फर्क। का अधिक दिखा दे। गुरुजी, आप बार बार बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल है तो मैं पूछ रहा हूँ, आर यू कॉन्फिडेंट दैट इंडिया विल बाउंस बैक? क्योंकि इस वक्त बहुत बात चल रही है, सिचुएशन टफ है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बिजनेस में टफ सिचुएशंस हैं, कैश फ्लोज की चैलेंजेस हैं, बहुत अलग अलग जगहों पे समस्याएं और चैलेंजेस चल रहे हैं, हर समाज के बिजनेस कम्युनिटी में भी, प्रोफेशनल्स में भी, हर हर वर्ग के साथ सिचुएशंस हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया बाउंस बैक करेगा? Definitely, I have 110% India will come and its own original way, and it will start moving, running, achieving the goal what we supposed to do. I'm Wonderful. 100% confident.
Wonderful, wonderful. Thank you so much, Guruji. Thank you so much for this confidence. गुरुजी, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे. मैंने हाँ. एक इंडिया बाउंस बैक मोमेंट हाँ. एक कॉन्सेप्ट निकाला था, और उसके लिए एक इंडिया बाउंस बैक का एक एक्शन है जो मैं चाहूंगा आप मेरे साथ करें. ये मेरी एक छोटी हाँ सी जी. दरख्वास्त रहेगी आपसे. ओके, सो इट इज, आप एक बार पहले मुझे ऑब्जर्व करिए और फिर आप बेशक से इसको हाँ. करेंगे साथ में. सो जी इट जी. इज इंडिया विल बाउंस बैक. सो 1 2 3 and 4. Okay. ओके. So ओके. together we will do it. 1 2 3. India will bounce back. बाउंस. Bounce back. Go. इंडिया विल बाउंस बैक. Thank you, Guruji. Thank you so much. आगे होंगे चलते ऑलमोस्ट. हैं. थैंक यू सो मच. गुरुजी, मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न ये करना चाहूंगा. हाँ. लास्ट 3 मैसेज, आपके इंपॉर्टेंट ऐसे 3 मैसेज जो आप भारतवर्ष के, हमारे इंडिया के लोगों के लिए देना चाहेंगे इस परिस्थिति के अंदर, इस स्थिति के अंदर, और आने वाले वक्त में जहां अपॉर्चुनिटीज आएंगी या और आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इंडिया बाउंस बैक करेगा. आपके 3 मैसेज लोगों के लिए. मेरा सभी जो भी लोग इसको सुनेंगे आगे चल करके, मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी, और मेरा अपना जो पक्ष है, मेरा अपना अनुभव है. जीवन में ऐसी परिस्थितियां कभी कभार आती है, हमने कभी देखा नहीं और कभी सुना नहीं, इसलिए लोगों के मन में थोड़ी भय की स्थिति बनी हुई है. लेकिन हमेशा जहां जहां भय होता है, फिर भगवान आगे चल करके निर्भयता का रास्ता भी खोल देते हैं. और जब कभी ऐसी परिस्थिति से हम उबरते हैं तो हम मजबूती से आगे बढ़ने लगते हैं. क्योंकि जब कभी भी अगर जीवन में केवल जिसने सुखी सुख देखा है, अनुकूलता ही देखी है, उसके जीवन में अगर प्रतिकूलता नहीं होती है तो वो जो है उसकी मजबूती का कमी होती है. तो मुझे यही कहना है अपने श्रोताओं से, अपने लोगों से, कि आप अपना धैर्य धरिए, धैर्य के साथ आगे चलिए, और इंडिया विल कम बैक अगेन एंड स्टार्ट मूविंग द सेम. दूसरा, ये परिस्थितियां हमारे जीवन में भले हमने कभी नहीं देखी, लेकिन ये इस पार्ट ऑफ माय लाइफ. मुझे अगर भगवान ने शरीर दिया तो शरीर के साथ में बीमारियां भी आएगी. लेकिन किस तरह से आती है, हमको हमेशा बुखार आएगा और फिर खांसी आएगी, जुकाम आएगी, हमें पहले देखी, इसलिए हमको उसके बारे में कभी भय नहीं होता था. लेकिन इस प्रकार की जो जो विश्व में सब जगह फैला हुआ है, विश्व में सब जगह चल रहा है, तो ये सामूहिक एक जो डिसीज है, जो रोग है, इसका भी एक भगवान ने ऐसा एक तूफान चलाया, उसके अंदर हो सकता है ही इज रिपेयरिंग द वर्क, रिपेयरिंग वर्क चल रहा है. सो दैट इज अप टू हिम. सो ठीक है, उसके लिए भी अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं है. और फाइनली मेरा प्रारब्ध जहां तक है, मुझे जब तक जीना है तब तक मुझे मेरे जीवन को कोई रोक नहीं सकता है. अगर मुझे जल्दी ही इस दुनिया से जाना है तो इसको भी मैं अपने आप को अवॉइड नहीं कर सकता. तो ये मेरा पक्का है कि प्रारब्ध है मेरा, तब तक मुझे अवश्य जीऊंगा, लेकिन सावधानी बरतनी है, क्योंकि इससे हम सीखते कि ऐसी भी कोई सावधानी हमको जीवन में रखनी चाहिए. तो ये अगर हम रखते हैं तो अवश्य निर्भय होकर के हम अपना निजी कार्य करते रहे और अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सामान्य रूप से जिए, और किसी भी प्रकार का भय नहीं रख करके, और ईश्वर के ऊपर अपना पूर्ण विश्वास रखे. They will come back and we will live the same life as used to. Hari Om. Hari Om. Thank you, Guruji. It was really, really insightful and a blessing for me that you were there and you shared such a wonderful insight for all the viewers. And आपका आशीर्वाद ऐसा बना रहे, और हम ये जितना ज्ञान, जितना आपने आज शब्दों को समझने का एक अलग नजरिया दिया, एक नए तरीके से लोगों को देखने का दृष्टिकोण दिया, मैं मानता हूं ये लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू स्वामी जी, आपने अपना वक्त निकाला और मुझे
ये मौका दिया कि मैं आपसे वार्तालाप कर सकूं. Thank you viewers for watching this. Stay tuned for another episode of India Bounce Back. और मैं यहीं पर आपका होस्ट डॉक्टर अंशुल ढींगरा इजाजत लेता हूं और गुरु जी के आशीर्वाद से हम सब लोग एंड इंडिया will bounce back. No doubt about it. Thank you. Guruji.